Hello everyone, I am Rakhi Nanar. Welcome to my channel. And today we are taking our class 10 exercise 6.3, the pending question from question number 11 to 16. I hope you have done the previous questions, and if you have not done, please go through and do those questions first so that the next questions will be very easy for you. Again and again I am saying the same thing. This chapter is not so easy, but if you will practice, you will get the idea how to initiate the question and you can do it well. So go through each and every question of this exercise. Today let's move towards our question number 11 from exercise 6.3. Here figure is given to you. E is the point on side CB produced, BC या CB जो side है उसको produce किया है, point E is there. Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. जो AB side है वो AC के equal है. If AD is perpendicular to BC, जो AD है वो perpendicular है BC पे, EF जो है वो perpendicular है AC पे. So आपको prove करना है ABD and triangle ECF are similar. So it's given to you that AB is equal to AC. So AB के अपोजिट एंगल कौन सा है आपके पास? ये वाला एंगल. और AC के अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल. आइसोस्लेस ट्राइंगल्स है तो दीज टू एंगल्स आर सपोज्ड टू बी इक्वल. सो यहाँ से आप कहेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू, उधर से आपके पास आ गया एंगल ECD, कह दो आप इसको ECD, ये वाला एंगल. ठीक है. वाई? Because ABC is an isosceles. Otherwise there is no need to write because आपने यहाँ mention कर ही दिया है. तो equal sides will have opposite equal angles. This is the property, no need to mention. Now आपको जो दो triangle दिए हैं उन पे focus करते हैं. In triangle ABD and triangle ECF. Again and again I am focusing on one thing, that is correspondency. ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है आपके पास ई पे. सो ABD में आपके पास ABD में दिस इज योर परपेंडिकुलर, तो एक एंगल ये 90 डिग्री का है. ECF में भी आपके पास 90 डिग्री का है, तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैचिंग करते हैं. इन ट्राइंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ADB लिख दिया 90 डिग्री का. इधर से इस वाली ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है आपके पास ये भी 90 डिग्री का है. अब यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया? EFC. बोथ 90 है तो नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड. इक्वल टू 90 हमें आपने यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. सो एक एंगल तो इक्वल हो गया दोनों ट्राइंगल से. नाउ सेकंड इज दिस एंगल ABD आपने लिखा था. ABD आपकी इसी ट्राइंगल का एंगल है. उधर से ये वाला जो एंगल है आपका ये इस ट्राइंगल में था ACD में, बट दिस एंगल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ट्राइंगल EFC या CEF इस ट्राइंगल के अंदर भी है. तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैचिंग करते हैं. ABD आपने मैच कर दिया. इधर से आपके साथ कौन सा एंगल बन गया? ECF. समझ आया कैसे लिखा इसको? इक्वेशन 1 कह दो और यहाँ पे मेंशन कर दो यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करते हुए हमने लिख दिया है एंगल ABD एंगल ECD के इक्वल था. जो ECD है वही आपका ECF है. समझ आया? ये जो एंगल है इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल हो गए. सो बाय एंगल कांग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, वी आर फोकसिंग ऑन सिमिलैरिटी. जो एंगल सिमिलैरिटी है वो क्या कहती है? Triangle ABD will be similar to triangle ECF. I hope you get it very easy. Simple given का थोड़ा यूज किया, एंगल्स को इक्वल लिखा एंड उन्हीं एंगल्स को हमने इक्वल पुट कर दिया फ्रॉम बोथ द ट्राइंगल्स. We will pause the video to write it down. Very easy question. So here is question number 12. Question number 12 given है आपको. Figure is also given and it is mentioned that the sides AB upon PQ, PC upon QR and AD upon PM is equal to
So in statement it is given that these sides are in proportion so sides AD and PM are median. So D is your midpoint of BC and M is midpoint of your side QR. Now we have to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. यानी कि जो बड़ी triangle है वो आपको similar prove करनी है. It is given to you. So from here one thing is BC upon QR, ये आपके पास given है, is equal to half of BC half of QR. ऐसा कह सकते हो आप, हाफ कर सकते हो दोनों का. हाफ ऑफ BC क्या है आपके पास, BD, विच इज इक्वल टू BD अपॉन हाफ ऑफ QR क्या है आपके पास, QM. These are the medians. It is given in the question. So from here BC अपॉन QR को आपने निकाल दिया BD अपॉन QM. So रिप्लेस कर दीजिए, इसकी वैल्यू को पुट कीजिए. नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR को क्या पुट कर दीजिए, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM. So from here these are the sides of triangle ABD and triangle PQM. इन दोनों ट्राइंगल्स की सारी साइड्स आपके पास क्या हो गई है, यहाँ से प्रोपोर्शनेट हो गई है. क्या किया मैंने, ये साइड ये BC अपॉन QR पूरा गिवन था, मैंने इसको हाफ में कर दिया. वाई, बिकॉज इट इज गिवन दैट D एंड M आर मिड पॉइंट्स. मीडियन है AD तो ये मिड पॉइंट होगा. सो BD अपॉन QM लिख सकते हो आप इसको, ये लिख के दिखाया गया आपको. इस वैल्यू को आपने यहाँ पे वापस पुट कर दिया है. पुट करने से आपके पास क्या आया, आपके पास आया कि ये जो तीन साइड्स हैं आपके पास दो ट्राइंगल्स की, ये प्रोपोर्शन में आ गई. और देखा मैंने AB BD AD ये तीनों ही आपकी कौन सी ट्राइंगल हैं, ABD ट्राइंगल्स की साइड है. इधर से PQ QM PM ये PQM ट्राइंगल की आपके पास साइड्स हैं. तो इफ दिस इज लाइक द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन आपको पता है अगर ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है तो क्या होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे. सो ये जो एंगल है आपके पास ये इसके इक्वल होगा. एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM. इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR. ऐसे लिख सकते हो आप, पूरा एंगल बन रहा है. सेकेंड थिंग आप क्या लिखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये चीज भी आपको गिवन थी यहाँ से. सो दो साइड्स आपकी प्रोपोर्शन हो गई, उनके बीच का एंगल हो गया. तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू. कैसे किया, पूरी ट्राइंगल में आपको यहाँ से BC साइड और QR साइड था, मिड पॉइंट गिवन था, तो मिड पॉइंट का यूज करते हुए मैंने प्रूव कर दिया BC अपॉन QR BD अपॉन QM के इक्वल है. अब इस पॉइंट को मैंने उठा के गिवन में पुट कर दिया, गिवन में पुट किया, देन यूजिंग दिस आई प्रूव दैट ट्राइंगल ABD एंड PQR ABD PQR छोटे वाली जो दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास वो सिमिलर आ गई. वो ट्राइंगल सिमिलर आई है तो क्या होंगे, आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. यहाँ से एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गया. अगर ये एंगल इक्वल हो गया, साइड्स प्रोपोर्शन उनके बीच का एंगल, सो आपके पास दोनों बड़ी ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर. वेरी इजी. पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन. And question number 13. D is a point on side BC of triangle ABC such that ADC angle is equal to angle BAC. Show that this is your ST sign for such that S dot D is show that CA square is equal to CB dot CD. First let's make the figure. D is a point on side BC of triangle ABC. तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, बना दिया. नाउ D इज पॉइंट ऑन साइड BC के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं D, सच दैट
डी पॉइंट आपको ऐसे चूज करना है, द एंगल ADC, ए और डी को ज्वाइन कीजिए, दिस इज योर एंगल ADC, इसके इक्वल है एंगल BAC के, ये जो पूरा एंगल है आपके पास इसके इक्वल है, आपको ये शो करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, यूज करेंगे द हिंट इज गिवन टू अस, हिंट हमें गिवन है कौन सा, एंगल ADC एंड BAC, तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स को हम चूज कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, यही दोनों आपने ट्राइंगल्स उठा ली। ADC कौन सी है, ये छोटे वाली ट्राइंगल है, BAC क्या है, पूरी बड़ी ट्राइंगल है, सो द कंप्लीट ट्राइंगल वर्सेस दिस हाफ स्मॉल ट्राइंगल, ये जो मैंने टिक बनाया है। सो लेट्स टेक द साइड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूव करना, ओनली देन वी कैन टेक द साइड्स। सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ADC में एंगल ADC आपको इक्वल गिवन है एंगल BAC के, ये तो आपको गिवन ही है। सेकेंड थिंग, दिस एंगल C इज कॉमन बिटवीन दीज टू, ये देखिए एंगल C आपका ADC ट्राइंगल में भी है और BAC ट्राइंगल में भी है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो गया आपके पास, कॉमन हो गया है। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्या कहता है, इफ यू हैव प्रूव्ड टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। सो जो ट्राइंगल आपके पास ADC है वो सिमिलर हो गई ट्राइंगल BAC के। अब आपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है, अब इनके साइड्स को क्या करें, प्रोपोर्शनेट। अब साइड कैसे चूज करेंगे, जो हमें टू प्रूव है वहां से, अब यहाँ से मैंने साइड लिया इस वाली ट्राइंगल से AC, आप यहाँ से डायरेक्ट उधर ना जाके यू कैन यूज द डायरेक्ट साइड, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ से मैंने ले लिया ADC ट्राइंगल में से AC लिया, उधर से कौन सा आएगा आपके पास, BC आएगा, यहाँ से आपके पास दूसरा आपने ले लिया CD, इधर वाली ट्राइंगल से AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू CD, विच एम्प्लाइज AC का क्या हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। क्या आपसे ये भी प्रूव करवाया है, AC स्क्वायर कहो या CA स्क्वायर कहो, CB कहो या BC कहो इंटू CD, हैंस प्रूव, वेरी इजी। सिर्फ आपने क्या ध्यान देना है, आपने जो हिंट दिया है आपको, जो गिवन पॉइंट है उसी से हिंट लिया एंड वी टुक दोस टू ट्राइंगल्स में हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाया यूजिंग आवर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, साइड्स को मैंने ऐसे चूज किया सो दैट आई गॉट डिजायर्ड रिजल्ट, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी गॉट आवर आंसर, वेरी इजी। मैं पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, side AB and AC and median AD of triangle ABC respectively proportional to side PQ and PR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. We have done our question number 12 where it was a bit similar, but here sides were BC and QR. So that was the very easiest question you have done. But here there is some difference that AB and AC is given to you. So let's make the figure first. We need to draw two triangles. This is your triangle ABC. ABC हमने एक ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल हमने ले लिया ट्राइंगल PQR। PQR दो ट्राइंगल्स हमने। नाउ आपको गिवन है, गिवन इज AB अपॉन प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, PQ, AC अपॉन प्रोपोर्शनलिटी है PR, और मीडियन है आपके पास AD अपॉन PM। सो AD है तो मीडियन इस पॉइंट पे बनेगी आपकी D एंड M, तो ये हो गया AD, ये हो गया आपके पास PM, ये दोनों है आपके पास मीडियन। मीडियन है मीन्स ये इसको हाफ पॉइंट पे कट कर देंगे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। टू प्रूव में आपके पास है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम आल्सो, ABC एंड ट्रायंगल PQR। थोड़ा सा टफ है बट इफ यू विल डू इट 2-3 टाइम्स यू विल कम टू नो कि करना कैसे है। हियर वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन एंड हाउ वी विल डू दैट कंस्ट्रक्शन, लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट व्हाई वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन। AB है आपके पास,
पी क्यू है आपके पास, ठीक है, वन साइड इज इन प्रोपोर्शन। सेकेंड है ए सी और उधर से पी आर, दैट्स ओके, ए डी और पी एम। बट ना तो यहाँ पे आपका ये मिड पॉइंट वाला एंगल काम कर रहा है, बिकॉज ए डी आपके पास एल्टीट्यूड नहीं है, सिर्फ मीडियन है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट बी सी एंड क्यू आर, कुछ पता ही नहीं है, तो हाफ करके इक्वल कैसे करें। सेकेंड थिंग, वी हैव नो आइडिया अबाउट एंगल्स, तो यहाँ से हमें कुछ क्लियर है नहीं, सो वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इन व्हाट वे, दैट आई विल एक्सटेंड AD to point E such that AD will become equal to DE. So construction मैं कर रही हूँ खुद से, पहले कंस्ट्रक्शन AD is equal to DE. Produce AD to point E such that AD is equal to DE. Similarly यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, PM को हम एक्सटेंड कर देंगे S पॉइंट तक, S पॉइंट नाम दे देते हैं, सच दैट PM इज इक्वल टू MS। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। नाउ ज्वाइन द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक और ट्राइंगल बन गई आपके पास। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, बट इफ यू विल पे अटेंशन यू विल गेट व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, E और S पॉइंट्स को हमने एक्सटेंड किया है यहाँ पे। सो आफ्टर कंस्ट्रक्शन व्हाट डिड वी नोटिस, दैट वी नोटिस दैट AD इज इक्वल टू DE, ये हो गया। बट वन मोर थिंग इज गिवन टू अस, दैट दिस D इज मीडियन, इट मीन्स BD इज इक्वल टू BC, ये चीज भी आपके पास है। उधर से QM इज इक्वल टू MR, ठीक है, इन दोनों को पेयर अप करते हैं। AD is equal to DE, BD is equal to DC. So from here I notice that in quadrilateral ABCE, in quadrilateral ABEC, इधर वाली क्वाड्रिलेटरल में आपने नोटिस किया BC क्या है, डायगोनल है, AE क्या है, डायगोनल्स है। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्शन है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम हमने कंसिडर कर लिया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। सो फ्रॉम हियर, so AB should be equal to CE and BE should be equal to BE, किसके इक्वल होगा, AC के। जस्ट हैव अ लुक अगेन, क्या किया हमने यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये चीज हमने किया। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल ABEC के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट डी। और ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास पैरेललोग्राम की, क्योंकि पैरेललोग्राम के आपके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो यहाँ से अगर ABEC पैरेललोग्राम है, देन द अपोजिट साइड्स आर सपोज्ड टू बी इक्वल। तो ये इसके इक्वल, ये आपका इसके इक्वल। आई होप यू गेट इट, मैंने क्या किया। तो यहाँ से इतना आपने इक्वल प्रूव कर दिया। नाउ सिमिलरली, यहाँ पे आप पूरा नहीं करेंगे, यू विल सिंपली राइट सिमिलरली। सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली आपका PQSR विल बी ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो यहाँ से भी आप कह दोगे कि ये वाली साइड जो है, आप ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, एंड द फोर्थ सिंबल आई एम टेकिंग सो दैट दिस इज फॉर कोरस्पोंडेंसी। ये चार लाइन है, ये चार इसके इक्वल है। चलो अब यहाँ से सिमिलरली आपने यहाँ से निकाल दिया, QS is equal to PR and PQ is equal to RS। ठीक है, ये चीज आपने प्रूव कर दी। नाउ अब आपने दो ट्राइंगल लेनी है। इन ट्राइंगल ABE एंड ये पूरी ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ABE एंड उधर से ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ट्राइंगल PQS, ABE एंड PQS। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए,
ये चीज आपको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, दोनों की एक एक साइड आ गई आपके पास ए बी और पी क्यू। सेकेंड ए सी अपॉन पी आर, ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी को आप लिख सकते हो बीई, चलो लिख देते हैं बीई अपॉन पी आर को क्या लिख सकते हो, पी आर को लिख सकते हो आप क्यू एस। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम राइटिंग। जो मैंने दो कंक्लूजन यहाँ से निकाले थे, आई एम पुटिंग दोज कंक्लूजन इन माई गिवन सेक्शन। दो चीज लिख दी आपने। सेकेंड इज ए डी अपॉन पी एम, ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हो, लिख सकते हो आप। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम, इसको क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ ए डी। ट्वाइस ऑफ ए डी तो पूरा ए ई है आपके पास, उधर से ट्वाइस ऑफ पी एम, ट्वाइस ऑफ पी एम क्या है, पूरा पी एस। सो इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगा, द ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एस आर सिमिलर। So triangle ABE is similar to triangle PQS, side similarity criteria, तीनों साइड्स आपने प्रोपोर्शनली शो कर दी। फिर से देखेंगे अब तक क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया छोटा सा, जितना AD था उतना DE लिया है और इन लाइंस को मैंने ज्वाइन किया है। सिमिलरली वहां पे MS मैंने लिया है PM के इक्वल। तो यहाँ से मैंने देखा कि डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। और बाइसेक्शन होता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम है तो आपकी साइड्स अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, अपोजिट साइड आपने इक्वल ले ली। अब अपोजिट साइड इक्वल थी तो उसी चीज को मैंने गिवन में पुट कर दिया यहाँ ट्वाइस क्या, सो दैट ये जो दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एस, ये ट्राइंगल्स क्या आ गई आपके पास, इक्वल। इक्वल आ गई तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो गई है कि ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शन थी, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। सो ये एंगल 1 इसके इस एंगल के इक्वल होने चाहिए, एंगल 2 के। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ आया क्या किया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये पूरा एंगल इधर से इसके इक्वल होगा, ऐसे सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब सिमिलरली लिखेंगे उधर वाली ट्राइंगल्स के लिए, वी विल नॉट प्रूव दैट अगेन, फिर से ये वाली चीज नहीं करेंगे। कर सकते हो इफ यू वांट कि इसको पुट करो वो करो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू विल राइट सिंपली सिमिलरली आई एम रिमूविंग दिस साइड दिस पोर्शन सो दैट आई मे राइट हियर similarly we will say that triangle ACE is similar to triangle PRS. I hope you get it. पहले हमने ये वाली बड़ी ट्राइंगल ली है, ऐसे वाली, उधर से भी ऐसे वाली हमने एक ट्राइंगल ली। Then similarly the other half of the triangle we are considering. So similarly we do the job here. No need to do separately all the stuff. So from here similarly आप लिखेंगे तो इधर से आपने एंगल को नाम दे दिया 3, यहाँ से एंगल हो गया 4। So angle 3 will be angle equal to angle 4. No need by, if you want to write them CPSP corresponding part of similar triangle. अब देखिए इसको नाम देते इक्वेशन 2। So we will add equation 1 and 2. 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. Now just look at the figure, 1 plus 3 क्या हो गया आपके पास, पूरा कौन सा एंगल, एंगल BAC is equal to angle QPR। ये पूरा एंगल 1 plus 3 एंगल 2 plus 4, ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। नाउ ये एंगल इक्वल हो गया बीच में, साइड्स आपके पास ऑलरेडी प्रोपोर्शन है, AB अपॉन PQ is equal to AC अपॉन PR, ये ऑलरेडी गिवन था आपको। यहाँ से साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का आपका रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। सो प्रॉपर्टी कौन सी है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, दो साइड प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। सो बाय SAS triangle ABC is similar to triangle PQR, hence this is done। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर से एक बार देखेंगे हमने अभी तक क्या क्या किया था। कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वालिटी लिया था, यहाँ पे इक्वालिटी लेके हमने क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम प्रूव होने से
कोरस्पॉन्ड अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, अपोजिट साइड्स को गिवन में पुट किया, दो ट्राइंगल चूज की, ट्राइंगल सिमिलर आ गई, सिमिलरली अदर टू ट्राइंगल्स विल आल्सो बी सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, उसी कंसेप्ट को हमने यूज करके ट्राइंगल्स को क्या किया, सिमिलर. You do this question by yourself. If you don't get it, if still you have any doubt, please do let me in comment section. I will make one more video on this particular question only. Now moving next, you may pause the video to write it down. Question number 15. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow. एक vertical pole है जिसकी length आपको given है 6 मीटर, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल आपको गिवन है, जो पोल है उसकी शेडो बन रही है जिसकी लेंथ है 4 मीटर. अब कह रहे हैं आपको एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो ऑफ 28 मीटर. शेडो ऑफ टावर, कोई टावर है जिसकी शेडो आपके पास बन रही है 28 मीटर की. आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द टावर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर. हाइट आपको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर. देखिए नेट हाइट ऑफ टावर भी h मान लेते हैं. अब देखिए व्हेन वी कंसीडर एनीथिंग ऑन ग्राउंड, जब कोई भी चीज़ आप ग्राउंड पे कंसीडर करते हो तो ये क्या होती है आपके पास वर्टिकल. जैसे आपके पास टावर हमेशा वर्टिकल रखा होगा, कोई बिल्डिंग आपके पास है वो हमेशा कितना एंगल बनाएगी यहाँ पे 90 डिग्री का. ये इमेजिन कर लेते हैं h बी द हाइट ऑफ द टावर, और ये जो है ये यहाँ तक आपकी शेडो बना रहा है कितनी 28 मीटर की. ये जो पूरी लेंथ है 28 मीटर है, ये आपका टावर था. अब पोल है इसके बीच में, पोल यहाँ पे है जिसकी लेंथ हमने कह दिया 6 मीटर है, और ये शेडो कितनी बना रहा है 4 मीटर की. तो पोल भी आपके पास परपेंडिकुलर रहता है हमेशा. सो यहाँ से ए बी सी, इसको क्या देते हैं पी क्यू. अब यहाँ से इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी एंड पी क्यू सी. देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, ये क्या है कॉमन है. सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू सी. समझ आया क्या किया? ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. सो एंगल सिमिलरिटी से आपकी ट्राइंगल्स हो गई सिमिलर. अब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन में. प्रोपोर्शनलिटी थी, यहाँ से ये साइड है, उधर से कोरस्पॉन्डिंग साइड की हाइट क्या है 6 मीटर. यहाँ से इस पूरी की है लेंथ है 28, कोरस्पॉन्डिंग की है 4. ऑल आर इन मीटर. चलने दे. चलिए h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 6 इंटू 28 अपॉन 4. कट कर दीजिए 4 7 जा 28, कट हो गया 6 7 42 मीटर. ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ दिस, हाइट ऑफ दिस टावर, लेंथ ऑफ दिस टावर. इजी, वेरी इजी. ग्राउंड पे 90 डिग्री का एंगल. You may pause the video to write it down. Last question of this exercise. AD and PM are median of triangle ABC and PQ are respectively. दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC जिसमें आपके पास AD जो है D मिड पॉइंट है, यानी कि AD जो है आपके पास मीडियन है. एक ट्राइंगल है आपके पास PQR जिसमें आपके पास PM M इसका मिड पॉइंट है, ये आपके पास मीडियन है. गिवन है आपको ट्राइंगल ABC, गिवन है ये चीज आपको, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. ठीक है, प्रूव करना है आपको. शो दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. पहले देखते हैं ये कौन कौन सी ट्राइंगल में AB और AD. AB और AD ट्राइंगल ABD का पार्ट है. PQ एंड PM, PQ एंड PM ट्राइंगल PQM का पार्ट है. चलिए ये दोनों ट्राइंगल, इफ आई विल प्रूव दिस ट्राइंगल सिमिलर तो काम हो जाएगा. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन. तो इनको सिमिलरिटी के लिए देखिए हमें कौन सी कंडीशन हम बना सकते हैं. फर्स्ट थिंग, दीज ट्राइंगल्स आर ऑलरेडी गिवन सिमिलर. तो प्रूफ करते हैं एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल्स भी क्या होंगे आपके इक्वल. तो जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा एंगल Q के. एक चीज तो ये हो गई. सेकेंड थिंग, साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन. सो AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू BC अपॉन QR। समझ आया क्या किया? जस्ट बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं तो ऑल द थ्री साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन एंड ऑल द थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। सो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन है, तीनों साइड्स क्या होंगे आपकी प्रोपोर्शन, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो आई एम कंसिडरिंग ओनली द माई कंसर्न एंगल। माई कंसर्न एंगल इज दिस B एंड Q, ये दोनों एंगल की आपको जरूरत है। अब ये देखिए BC अपॉन QR है, आप इसका हाफ कर सकते हो, 1/2 BC, 1/2 BC क्या होगा आपके पास BD। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC को लिख सकते हो आप BD एंड हाफ ऑफ QR को लिख सकते हो QM। सो देखिए ये साइड अपॉन ये साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, प्रोपोर्शनलिटी चेक कर रही हूँ, दिस इज द साइन फॉर इक्वालिटी, विल नॉट पुट इट, आई एम रेफरिंग दैट BD अपॉन QM हो गया, ये हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया। सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। समझ आया क्या किया? जो गिवन था उसका में से एक एंगल इक्वल निकाला, ये प्रोपोर्शन थी उसका यूज किया। सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ये हो गया, तो साइड क्या होंगे अब? प्रोपोर्शन। इधर से साइड लिया AB, उधर से साइड आया PQ, इधर से साइड लिया AD, उधर से साइड आया PM। यही प्रूव करना था। यस, हेंस प्रूव। वेरी इजी। सो that's all for today. Your exercise 6.3 is over from my side. If any doubt, do let me know in comment section. And do all the question by yourself. Until you will not do, you will not get it. That's all for today. Thank you, students. Have a good day.